Let us pray. आइए दुआ करें। Gracious Lord, as we wait upon you, we pray that, Lord, thou would speak to us, anoint the servants afresh, fill us with your spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Second Timothy chapter 2, verse 15. दूसरा तिमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन। Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. अपने आप को परमेश्वर को ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। We have been trying to study the scriptures, basic doctrines, so that when we stand before the presence of God, we will not be ashamed. और हम मसीही विशेष आधारभूत सिद्धांतों को और परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं ताकि एक दिन हम परमेश्वर के सामने हम लज्जित होने ना पाए खड़े होते समय। It is possible when we are able to rightly divide the word of truth. और ऐसा तभी होगा जब हम परमेश्वर के वचन को सही रीति से काम में लाएंगे और उसे सही रीति से विभाजित करेंगे। So far we have studied two parts of the doctrine of sin. और हमने पाप का जो अध्ययन कर रहे थे उसके हम दूसरे भाग को हम देख चुके हैं। Maybe God willing, we will be completing this study by this evening. और प्रभु ने चाहा तो आज की शाम हम इस अध्ययन को पूरा करेंगे। This is very, very important doctrine. Not that other doctrines are not important, but this is very, very important. Every person must know. और ये एक बहुत ही विशेष अध्ययन का भाग है, इसलिए हर एक विश्वासी को और मसीहों को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। If we touch any subject in the scripture, they are very deep, but we will not be able to handle every area of the subject. But we are trying to do the best possible, which are very, very important. और पाप के अध्ययन के इस भाग को भाग के हर भाग को हम गहराई से अध्ययन तो नहीं कर सकते, परंतु जितना भी हमें समय मिला है उसमें हम इसके विशेष बातों का अध्ययन करेंगे। If we have to appreciate the value of salvation, we have to definitely know how horrible sinners we are. और अगर हम उद्धार की महिमा को और उद्धार की कीमत को समझें तो हमें इस बात का एहसास होगा कि कितने हम भयानक रीति से और गंभीर पापी हैं। In other ways, if we have to understand the importance of the solution, we should know the gravity of the problem. और अगर हमको हमारे जो समस्या की जो समाधान होती है उसकी हमको गहराई के बारे में मालूम हो तो हमको वास्तव में समस्या की गहराई के बारे में भी पता चलेगा। Last time when we studied, we have studied the roots of sin. और पिछली बार हमने पाप की जड़ों के बारे में पढ़ा था। So we have seen that pride, lust, covetousness, envy, wrath, gluttony, slothful, they are the roots of the sin. We don't normally see them as the roots, but they are the real roots. और ये जो पाप की जड़ों के बारे में हमने देखा था, गर्व, लालसा, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, लोलुपता और आलसीपना, ये सभी जो हैं पाप की जड़ों जड़ों के रूप में हम देखते हैं इसे। So we have seen also the antidotes. Humility is the antidote for pride, self-control is the antidote for lust, charity is the antidote for covetousness, kindness is the antidote for envy, patience is the antidote for wrath, satisfaction is the antidote for gluttony, active is the antidote for sloth. और हमने जो तमाम जो ये जो पाप की जड़ें हैं इसके हमने एक इसके विपरीत इसके इलाज को हमने देखा कि किन दवाओं से जैसे कोई ठीक होता है उसी प्रकार हमने देखा कि गर्व जो है दीनता से सही होता है, लालसा जो है आत्मनियंत्रण से सही होता है, लोभ जो है परोपकार करने से सही होता है, ईर्ष्या जो है दयालुता से सही होती है, क्रोध सहनशीलता से सही होता है और जो लुलुपता है वो संतुष्टि से सही होता है और आलसीपन जो है वो सक्रिय होने से सही होता है। So we have seen original sin, consequences of sin, different forms of sin, roots of sin.
तो हमने मूल पाप के बारे में, पाप के परिणाम के बारे में, पाप के विभिन्न रूप के बारे में और पाप की जड़ों के बारे में देख लिया है। Today we will try to study a few things about the degrees of sin. आज हम पाप की डिग्री के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। That means sin has different variants of degrees. Some of us may not be able to understand or may not be able to agree also, but still we will try to see what the word of God says. और हम पाप की डिग्री को समझना आसान तो नहीं है, परंतु पाप के जो विभिन्न जो प्रकार होते हैं, उसके जो विभिन्न विभागों को हम थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। Matthew's Gospel, chapter 5, verse 22. Whoever says to his brother, Rakha, shall be in danger of the council, but whoever says, you fool, shall be in danger of hellfire. मत्ती 5 अध्याय उसके 22 में लिखा है कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। Matthew's Gospel, chapter 5, is the commentary of the Old Testament law explained by the Lord Jesus Christ. और मत्ती जी सुसमाचार की किताब ये जो 5 अध्याय है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने वास्तव में पुराने नियम के जो संदेश है, जो आज्ञाएं हैं, उसके बारे में वर्णन किया हुआ है। Chapter 5, chapter 6, chapter 7 is called Sermon on the Mount, which is very, very famous. और जो मत्ती 5, 6 और 7 अध्याय हम जानते हैं कि ये बहुत ही प्रसिद्ध है, और हम इन्हें पहाड़ी शिक्षा के रूप में जानते हैं। So whenever we study the Sermon on the Mount, most of us we tremble because they're very serious warnings. और हम जब ये पहाड़ी शिक्षाओं को देखते हैं तो हम बहुत ही इससे हमें भयभीत होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर समस्या, बहुत ही गंभीर संदेश है। You tell me who among us escape from this kind of judgment? A number of says we say to our brother Rakha, maybe like a fool. Definitely Bible says we shall be in the danger of hellfire. और हम इस वचन के द्वारा देखते हैं कि कैसे हम बड़ी कठिनाई से और इसे गंभीर न्याय से बच पाएंगे। यहाँ पे देखते हैं कि जब कोई अपने भाई पे क्रोध करता है तो उसको दंड मिल रहा है, और जो कोई अपने भाई को मूर्ख कह रहा है वो नरक की आग में दंड के योग्य हो रहा है। तो ये कितना ही एक गंभीर न्याय के समय हम इन परिणामों को देख रहे हैं। Most of us are guilty with these sins. अंकल, आई थिंक देयर इज अ स्ट्रिप ओवर राइटिंग्स, आई थिंक सो प्रॉब्लम। Is it okay now? या इट इज ओके। ओके, प्लीज प्लीज अंकल। So there are, when we carefully study the principles of interpretation, there are two kinds of interpretation. One is literal interpretation and the other is non-literal interpretation. और हम जब व्याख्या के सिद्धांत के बारे को देखते हैं तो अंकल, आई थिंक देयर इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट स्टार्ट, आई थिंक। No. Please go ahead. ओके, तो हम यहाँ पर जब व्याख्या के सिद्धांतों को देखते हैं तो हम पहले अक्षरिक व्याख्या को देखते हैं और दूसरा गैर अक्षरिक व्याख्या को देखते हैं। So literal interpretation means by its face value, where the Bible says, if you say your brother as a fool, you'll be landing in the hellfire. That's a literal interpretation. और यहाँ जो अक्षरिक व्याख्या हम देखते हैं कि जैसा शब्द में लिखा है अगर उसी को हम समझें, तो जैसा लिखा है कि अगर अपने भाइयों को आपने मूर्ख कहा तो आप वहां पर नरक की आग के दंड के योग्य होंगे, तो वह केवल एक शाब्दिक व्याख्या को बता रहा है। So should we interpret literally or should we interpret non-literally? तो हमारे पास एक सवाल रहेगा कि हम इन शब्दों की अक्षरिक व्याख्या करें या गैर अक्षरिक व्याख्या करें। If you have to understand the scriptures, there are certain principles of interpretation. Most of us are not aware of it, but we should know it. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्याख्या के सिद्धांतों के बारे में नहीं जानते हैं, परंतु हम सबको व्याख्या के सिद्धांत के बारे में जानकारी अवश्य होना चाहिए। If you are willing to give me 6 hours, I'll be happy to share with you all these things. और अगर आप मुझे कम से कम 6 घंटे दें तो मैं आपको इन सब के बारे में एक अच्छा अध्ययन बता सकता हूँ। I normally teach this in the subtitle called Personal Bible Study.
और मैं इनको एक प्रकार से व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन कहता हूँ, उसमें मेरी बातें समझाई जाती है। So, to make the long story short, literal interpretation or spiritual interpretation. तो हम इसे आक्षरिक व्याख्या और आत्मिक व्याख्या कह सकते हैं। Again, in the non-literal or spiritual interpretation, there are three categories. One is figurative language, and the other is literary genre, and the third one is special interpretation. और जो गैर अक्षरिक व्याख्या है या आत्मिक व्याख्या है, इसको तीन भागों में हम बांट सकते हैं: अलंकारिक बोली और साहित्यिक शैली और विशेष व्याख्या। Matthew's Gospel, chapter 5, verse 29 says, "If your right eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you." मत्ती 5 अध्याय उसके 29 में लिखा है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। This was written in the context of adultery. Bible मत्ती says, the very if we have an evil thought in our own mind, Bible says, you have already committed adultery in your mind, in your heart. और व्यभिचार के विषय में इस प्रकार की आज्ञा बाइबल बताती है कि जब हम अपने मन से किसी को व्यभिचार की नजरों से देखते हैं तो हमारे जीवन से उस व्यभिचार का पाप हो जाता है। Please read Matthew's Gospel 5:29 in Hindi, Badak, the total verse. और मत्ती 5 अध्याय और अगर उसके 29 वचन को अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है। Yeah, verse 28 also. But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her heart in his heart. Please, please मत्ती read पांच verse यस 28 and 29. मत्ती 5 अध्याय उसके 28 और 29 में इस प्रकार लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। और यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। If you have to literally interpret this verse, I tell you, you will not find any male on the face of the earth. और अगर आप इसको अगर इनको हम अक्षरिक व्याख्या लेंगे तो फिर ऐसे में तो सारे पुरुष लोगों को धरती से चले जाना पड़ेगा। Yeah, of course. With completely blind to remove every person has to remove two eyes, because in the lifetime, definitely sometime we fall prey to this kind of sin. और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ऐसा भी हम सोचते हैं कि क्या हर एक पुरुष अपनी आंखों को निकाल दे और वो कुछ देखे ही ना, ऐसा नहीं है। परंतु एक मनुष्य अपनी आंखों के अनुसार प्रार्थना करना है कि हम इस प्रकार के पाप हमारे जीवन से ना हो। Arey bhai, you are adding so many things. I did not say that. ओके अंकल। No, no, literally translate, because there is a point behind it. ओके अंकल। Yeah. So this is called in the grammar hyperbole. Hyperbole means it's a figure of speech that utilizes extreme exaggeration to emphasize a certain quality or feature. और व्याख्या के सिद्धांत में जब हम हाइपर बोले शब्द को देखते हैं, इसका मतलब है कि ये भाषण का एक आंकड़ा है जो एक निश्चित गुणवत्ता या विशेषता पर जोर देने के लिए अत्यधिक अतिशयोक्ति का उपयोग करता है। So this is written in a figurative language. तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो वचन लिखा हुआ है वो अलंकारिक रूप में लिखा हुआ है। So this cannot be interpreted literally. इसलिए हम यहाँ पर वचन की व्याख्या आक्षरिक रूप से नहीं कर सकते। But at the same time, we are not trying to minimize the seriousness of this sin. और उसी समय हम यहाँ जो पाप की गंभीरता को बताया गया है उसको कम भी नहीं करना है। We should also be very much serious, because the Bible says so serious, so emphatically in a such an extreme exaggerant manner. और चूंकि हमको यहाँ जो पाप की गंभीरता को बहुत ही गहराई से बताया गया है, इसलिए हमको उस प्रकार से उसको समझना बहुत ही जरूरी है। So, is the attitude of sin or action of sin will have the same consequences? और हमारे पास एक सवाल है कि क्या पाप की मनोवृत्ति या उसके कारण किए गए कर्म के जो समान परिणाम होंगे, दोनों का परिणाम क्या एक जैसा होगा? यह हमारे पास एक सवाल है। So we need to think about it. हम इसके बारे में सोचेंगे।
Luke's Gospel, chapter 12, verse 47. Servant who knew his master's will and did not prepare himself or to do according to his will shall be beaten with many stripes. But he does not knew yet committed things deserving of strips shall be beaten few. और यहाँ पर लूका की किताब 12 अध्याय उसके 47 और 48 में हम देखते हैं, वह दास जो अपनी स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, वह बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने की योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। So that means uh, if you know the will of God and don't do it, you'll pay for it. Even if you don't know, but when you do things which are worthy, to receive beatings or stripes, that means whether there are few things which every believer must know. No one can say that I don't know and so I'm excused. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो परमेश्वर की इच्छा को जानता था और उसके अनुसार नहीं चला, वो भी एक प्रकार से सजा का हकदार होगा। और जो नहीं जानकर मार खाएगा, उसको भी सजा मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो योग्य है उस काम के, क्योंकि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उनके विवेक में कहीं ना कहीं ये बातें रहती है। So here we see two kinds of punishments. One is more punishment and less punishment. तो यहाँ पे हम दो प्रकार की सजा को देखते हैं, एक जो अधिक सजा मिल रही है, जहाँ पे अधिक मार खाया जा रहा है, और एक कम सजा, जहाँ पर थोड़ी मार खाएगा। So you know that you should do it, you did not do it, you will definitely have punishment. Even when you do not know things which are due for punishment, yet you will receive punishment. और यहाँ लिखा है कि जो मनुष्य जानता था कि उसको नहीं करना चाहिए, वो किया, तो उसको जरूर वहां सजा मिलेगी। परंतु अगर वो नहीं जानता था, तो भी उसको वहां पर सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि वहां पर वो परमेश्वर का एक न्याय है, वहां पर भी उसे सजा मिलेगी। That's what we mean degrees of sin. और इसी इसी को हम पाप की डिग्री कहते हैं। So sin of some cadre or sin of certain categories will receive more weight of punishment. Sins of certain categories will receive less intensity of punishment. और हम देखते हैं कि कुछ पाप ऐसे हैं जो बहुत गंभीर हैं, और उनका जो परिणाम है वो बहुत ही गंभीर है, और उसमें अधिक सजा मिलेगी। परंतु कुछ पाप ऐसे हैं जो कम गंभीर होते हैं, उनके लिए कम सजा मिलेगी। Leviticus chapter 5 verse 17. If a person sins and commits any of these things which are forbidden to be done by the commandments of the Lord, though he does not know it, yet he is guilty and shall bear his iniquity. और यहाँ पे लय व्यवस्था उसके 5 अध्याय के 17 में हम देखते हैं, यदि कोई ऐसा पाप करे कि उन कामों में से जिन्हें यहोवा ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वह उससे के अनजाने में हुआ हो, तो भी वह दोषी ठहरेगा, और उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। Ezekiel chapter 8 and verse 6. He said to me, that means the Lord said to Ezekiel, son of man, do you see what they are doing? The great abominations that the house of the Lord commits here, house of Israel commits here, to make me go far away from my sanctuary. Now turn again, you will see greater abominations. और यहाँ पर ये हिजकेल की किताब उसके 8 अध्याय उसके 6 वचन को हम देखते हैं। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इज़राइल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहाँ करता है, ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं, परंतु तू इनसे भी अधिक घृणित काम देखेगा। This is the context just before the king of Babylon burns the temple of God, burns the Jerusalem because of the sins of the people of God. और हम देखते हैं कि ये उस समय की घटनाएं हैं जब मनुष्य के पाप के कारण बेबीलोन का जो जो शासक है, उसने यरूशलेम के मंदिर को नाश कर दिया था। ये उस समय की घटनाएं हैं। The sins of the people of God were so great that they were actually uh, driving out the Lord from the very presence of God, from the temple of God. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वास्तव में इजरायली लोग बहुत अधिक पापी हो गए थे, और उनके पाप के कारण परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर से हट गई थी। Here we see the great abominations
and see greater abominations. There are different degrees. और यहाँ पर जो पाप की अलग अलग मात्राओं के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर बड़े ही घृणित काम ऐसा करता है करके और अधिक घृणित काम देखेगा, ऐसा यहाँ पर पाप की मात्रा के बारे में लिखा है। Verse 13 of the same chapter, Ezekiel chapter 8. And he said to me, turn again, and you will see greater abominations than that they are doing. और यहाँ पर यहेजकेल 8 अध्याय के 13 में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, तो इनसे और भी अधिक घृणित काम देखेगा जो वे करते हैं। And see verse 15. Then he said to me, have you seen this, O son of man? Turn again, you will see greater abomination than this. We find the intensity of the sin was greater and greater from verse 6 and then verse 13 and then verse 15. तो यहाँ यहेजकेल 8 अध्याय उसके 6 वचन को जब हम पढ़ते हैं और उसके जब हम आगे इन वचनों को देखते जाते हैं, 11, 13 और 15 वचनों को, तो यहाँ पर पाप की जो तीव्रता है वो बढ़ती जा रही है, ऐसा हम देखते हैं। Matthew's Gospel, chapter 11 and verse 20 and 21. The Lord Jesus Christ, he began to rebuke the cities in which most of his mighty works had been done because they did not repent. Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. और यहाँ मत्ती 11 अध्याय के 20 और 21 में यूँ लिखा हुआ है, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजिन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुझमें किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो वे टाट ओढ़कर और राख में बैठकर कब के मन फिरा लेते। Here the Lord is saying, because the mighty works, the miracles were done among them, but they rejected to believe him. So they have to pay the greater punishment. That's what he's trying to say. और यहाँ वचन में ये लिखा हुआ है कि बहुत सारे आश्चर्य कर्म जो परमेश्वर ने इनके मध्य में किए थे, और इन बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद भी इन्होंने विश्वास नहीं किया और मन नहीं फिराया, इसलिए लिखा है कि उनको इस पाप के अधिक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। Same things in our life also. When we enjoy the more privileges, the greater miracles in our life, but we don't respond in obedience, we will also be equally facing more judgment, more intensity of punishment. We need to be very careful. और हम देखते हैं कि अगर हमको भी परमेश्वर ने बहुत सारी अनुग्रह और परमेश्वर ने एक सौभाग्य दिया हुआ है, हमारे जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्म हुए हैं, और उसके अनुसार हम परमेश्वर को महिमा नहीं देते, हम उसके अनुसार परमेश्वर को हम प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो इसके भी कारण हमें एक दिन गंभीर न्याय का सामना करना पड़ेगा। James chapter 3 verse 1, my brethren, let not many of you become teachers, knowing that we shall receive a stricter judgment. That means harder judgment, a more judgment. और इस यहाँ पे याकूब की किताब उसके 3 अध्याय के पहले वचन को हम देखते हैं कि हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसका मतलब यही है कि जो उपदेशक और प्रचारक होते हैं उनको ज्यादा गंभीर न्याय का सामना करना पड़ेगा। Because a teacher who teaches doesn't practice, definitely he'll be under judgment greater than the people, those who listen to him. और अगर एक व्यक्ति शिक्षक है और वो दूसरों को सिखाता है, परंतु अगर उसका खुद ही पालन नहीं करता, तो वो बाकी साधारण केवल सुनने वालों से कहीं अधिक न्याय का हकदार होता है। John's Gospel, chapter 19, verse 11. Jesus answered, you could have no power at all against me unless it has been given to you from above. Therefore, the one who delivered me to you has the greater sin. और यूहन्ना 19 अध्याय के 11 में यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता, इसलिए जिसने तुझे मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। So, greater sin. You please note this line, greater sin. और यहाँ वचन में हम देखते हैं कि तेरा उसका पाप अधिक है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। Matthew's Gospel, chapter 12, verses 31 and 32. Therefore, I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven, uh, forgiven men, but
the blasphemy against the Spirit which not be forgiven man. Anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him. But whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him, either in this age or in the age to come. और मत्ती उसका 12 अध्याय उसके 31 और 32 में हम देखते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। There are different kinds of opinions or approaches for this verse. और ये जो वचन है, इसके लिए बहुत सारे लोग अलग अलग दृष्टिकोण और विचार देते हैं। The title is Unpardonable Sin. और यहाँ इसका मतलब हमने शीर्षक रखा है अक्षम्य पाप, मतलब ऐसे पाप जिसकी क्षमा नहीं हो सकती है। Different views. Some say it's meant only while Jesus on the earth. और बहुत इस बात को समझने के लिए हम विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण रखते हैं। उसमें हम पहला देखते हैं, इसका मतलब केवल उस समय था जब यीशु मानव के रूप में पृथ्वी पर थे। And some theologians say that the unpardonable sin is to attribute deliberately what God has done to the Satan. और यहाँ पे दूसरे विचारधारा के लोग ये बताते हैं कि अक्षम्य पाप वो होता है जो जानबूझकर परमेश्वर के कार्य का श्रेय शैतान को लोग देते हैं। And a few other theologians, what they say is, what is this unpardonable sin? That is unbelief held on to Jesus until death. और कुछ विभिन्न दृष्टिकोण के लोग कहते हैं कि अक्षम्य पाप वो है जो यीशु पर विश्वास जो है वो मृत्यु तक थामे रहे। And some theologians, they say that it is talking about a believer who commits apostasy. That means one who practiced the truths concerning God, but he backslides and he rebels against the same. That's called apostasy. Uncle, I think the picture view is not full, so I think not seeing below line. Full view, give the picture. Believers who commits apostasy. Are you able to see? No, uncle. Actually, there is a under the task bar. Give the full view, so that then we see. But I'm able to see in my mobile. I'm able to see in my mobile. About Sridhar? Yes, uncle. Are you able to see or not able to see? Yes, able to see, uncle. You're able to see. Actually, brother, you have to. Yes, you have to click on that screen, brother. Then it will go down the taskbar. अच्छा या सब ठीक है भैया, because I have another monitor before me. I'm able to see what is displayed. Maybe something wrong with your screen. Okay. Anil Khare, can you refresh it? Okay, uncle. Okay. अनिल ब्रदर स्क्रीन पे टच कीजिए, वो टास्क बार नीचे चला जाएगा, हाइड हो जाएगा। Okay, uncle. I think there is a problem in my laptop. No problem. Continue, uncle. Yeah. Okay. Then 1 John chapter 5 verses 16 and 17. If anyone sees his brother sinning a sin which does not lead to death, he will ask and he will give him life for those who commit sin not leading to death. There is a sin leading to death. I do not say that he should pray about that. All unrighteousness is sin, and there is sin not leading to death. और यहाँ पर मौत की ओर ले जाने वाले पाप के बारे में हम जब वचन देखते हैं, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 16 और 17, यहाँ ऐसा लिखा है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। Maybe at some point of time you must have got these questions. What is this sin leading unto death? और कई बार हम ऐसा पूछते हैं कि ऐसे कौन से पाप होते हैं जिसका परिणाम मृत्यु होता है।
theologians say that sin that which brings shame and disgrace to Christ. और ऐसे पाप जो मसीह के लिए लज्जा और अपमान को लाता है, ऐसे पाप। And some theologians say that it is something like God's discipline, a premature death, which we find it 1 Corinthians chapter 11 verses 29 to death. You know, when we partake in the Lord's table unworthily, its category said in 3 times: weakness, sickness, and death. और यहाँ पे हम कुछ जो थियोलॉजियंस जो हैं, बाइबल के जो व्याख्याता है, वो कहते हैं कि ये परमेश्वर का एक अनुशासन है और इसमें हम समय से पहले लोगों की मृत्यु को देखते हैं। जो पहला कुरिन्ती 11 अध्याय 29 और 30 में लिखा है कि जब लोग अनुचित रीति से रोटी खाते हैं तो कई लोग वहाँ पे लिखा है कि दुर्बल हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं और सो जाते हैं। Thank you, brother Moses Greenwood. He put a message saying that in the translation of third one is not correct. It should be aviswas instead of viswas. Yes, brother. Thank you. We will correct it. So ultimately, when we sum up, what we understand is those who are born again, they are justified by faith through our Lord Jesus Christ. और हम अगर न्याय को देखें तो जो लोग फिर से नया जन्म पा चुके हैं, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए होते हैं। And they are united to Christ and they are complete in Christ. और वे मसीह के साथ संयुक्त और मसीह में पूर्ण होते हैं। And those who love the Lord and obey the Lord, and those who are really led by the Lord, they are being sanctified by the Holy Spirit. As they love the scriptures, God speaks to them and they grow in holiness. और जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रता में बढ़ते हैं, और जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्रता में बढ़ते जाते हैं। That is a general understanding. There is no doubt or no confusion about it. और ये एक साधारण सामान्य समझ की बात है, यहाँ पे कोई इसमें शंका और शक की बात नहीं है। There is no sin that will undo our justification and will not reject the sanctifying work of the Spirit by the loss of our salvation. This is what we believe. No doubt about it. और ऐसा कोई पाप नहीं जो हमारे धर्मी ठहराए जाने को पूर्ववत कर दे और हमारे उद्धार के नुकसान के द्वारा आत्मा के पवित्र करने के कार्य को अस्वीकार नहीं करेगा। But there is some confusion because there is few who say that all sin is sin before God, no degrees of sin. That is not acceptable. और ऐसा भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के सामने सभी पाप जो है पाप हैं, और पाप की कोई मात्रा नहीं होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। No. Not that we are saying it. There are some who say so. और कुछ लोग ऐसी अपनी विचारधारा बताते हैं। We know that none of us are matured perfectly, and no perfect Christian on the face of the earth, no perfect holiness on the face of the earth, no perfect church on the face of the earth. और हम जानते हैं कि इस धरती पर कोई भी सिद्ध मसीह नहीं है, और सिद्ध विश्वासी नहीं है, और सिद्ध कलीसिया नहीं है। It does not mean to say that we take light of the scriptures, we take light the serious warnings given in the scriptures. और अगर इस संसार में कोई सिद्ध नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी हमें पाप के विषय में गंभीरता के बारे में कहा गया उस हम न्याय को गंभीर न समझे, साधारण ले लें, ऐसा नहीं है। Why I am sharing all these things? It is not for general sharing from the pulpit, because people may misunderstand. Because you are the teachers, and so when you are teaching from the pulpit, you yourself should know how to balance these things. और ये जो बातें हैं विशेष गंभीर पाप की बारे में जो मात्रा जानना, ये हमारे शिक्षकों के ज्ञान के लिए है, क्योंकि हम इसे पुलपिट से प्रचार करते समय साधारण विश्वासी समझ नहीं सकते, और वो कई बार जो है भरमाए जा सकते हैं। As a Bible teacher, we should know the depths of the scriptures. We should understand the scriptures in full clarity, so that when we teach to the common people, simple people, we should be able to
deal in all its clarity. और हम जो बाइबल के जो शिक्षक हैं, जो अध्ययन करते हैं, हमें गहराई से इन बातों का अध्ययन मतलब ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम अपने विश्वासियों को इस अच्छी रीति से समझा सकें। For that reason, we are sharing this particular item in the doctrine. Otherwise, if we say from the pulpit that there is a smaller sin and greater sin, and people continue to do the sin, saying that this is chota hai, kitna bada punishment nahi milta hai, and they take it light. So please be very careful when we teach from the pulpit. We should know how to handle the scriptures in all its clarity. और हम जब शिक्षक होने के नाते इन पाप के जो मात्राओं को गंभीरता से और गहराई से अध्ययन करेंगे, तो हमारी जो स्पष्टता बढ़ जाएगी, और उसी प्रकार हम भी अपने विश्वासियों को पुलपिट से प्रचार करते समय हम उन्हें बता पाएंगे कि पाप की गंभीरता क्या होती है। नहीं तो वे लोग कई बार अधिक बड़े पाप और छोटे पाप की कोई भी अंतर समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम उन्हें अच्छे से समझाना है। So we should be so severe when we handle sin in our own attitudes and motives, because that will spring forth, that will yield the real deeds. And so we should be very careful in handling our uh, thoughts, in our attitudes, because they are very serious, so serious that we should be pulling out our eyes. To that level, we should be taking treatment to ourselves. और हमारे जो व्यक्तित्व है, हमारे स्वभाव में हमें इस गंभीर विषय को समझना चाहिए और पापों से हमें दूर रहना चाहिए, ताकि हम एक प्रकार का अपने जीवन को एक फलदायी बना सके, ताकि दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण हम हो सके, ताकि जो वचन लिखा है कि मैं ऐसा भी हो सके कि मैं अपनी आंखें निकाल दूं, ऐसा भी वचन में लिखा है, ताकि पाप ना हो। So next we'll see the backsliding is never sudden. और जो अगला विषय हम देख रहे हैं कि पीछे खिसकना कभी अचानक नहीं होता है। Whenever a believer is backslided, don't ever pity him, saying that no 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 no, अरे कितना emergency sudden हो गया भाई, ऐसा ऐसा you should never take it, because it is never sudden. और ये जो बैकस्लाइडेड होना या जो मसीह में परमेश्वर में पीछे हट जाना, कुछ लोग बोल देते हैं कि अब मेरे साथ ऐसा अचानक हो गया, परंतु ऐसा नहीं होता है। पीछे हटना कभी अचानक होने वाली घटना नहीं होती है। Exactly, yeah, you're right, brother. It's all step by step. Backsliding is always step by step, and it is not sudden. You don't have to pity, but we have to harshly handle it. और ये जो पीछे हटने वाली जो घटना होती है, ये अचानक से नहीं होती, परंतु एक एक कदम एक इंसान पीछे हटता जाता है, ऐसा होता है। James chapter 1 verses 14 and 15. Each one is tempted when he is drawn away by his own lust and enticed. Then, when lust has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, brings forth death. और यहाँ पे हम याकूब की किताब 1 अध्याय उसके 14-15 में देखते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। So, lust is something that is there's a process begins from there. First lust, and then temptation. When lust and temptation joins together, it brings forth sin, and sin intensity is completed, then it brings forth death. और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो शुरुआत होती है वो अभिलाषा से होती है, और अभिलाषा बाद में प्रलोभन को लेकर आता है, और अभिलाषा और प्रलोभन मिलकर पाप को जन्म देता है, और पाप मृत्यु को जन्म देता है। Please remember, temptation itself is not sin. और यहाँ पे हमें एक चीज जानना है कि प्रलोभन अपने आप में कोई पाप नहीं होता है, But temptation leads us to sin. परंतु ये जो प्रलोभन है ये हमें पाप की ओर ले जाता है। What do you mean by lust? अभिलाषा से हम क्या समझते हैं? We have already seen in the previous session. और हमने इससे पहले वाली क्लास में इसे देखा था। Every one of us should definitely have desires. Desire और itself is not wrong, but if the desire crosses its boundaries, if the desire is more than what is required of its measure, every person should have desire.
Desire itself is not wrong, but lust is something which is desire which has crossed its measure, a higher measure of desire. तो लालसा के बारे में हम ऐसा समझ सकते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में इच्छाएं होती है, और परंतु जब वो इच्छाएं एक सीमा से बाहर हो जाती है और वो अपनी सीमा को पार कर देता है, तब उसे हम एक अभिलाषा के रूप में कह सकते हैं। James, Apostle James says, sin always begins with the lust. और याकूब बताता है कि कोई भी पाप की शुरुआत जो होती है वो अभिलाषा से होती है। In English, whenever we say lust, it is something joined with adultery or fornication. और जब हम यहाँ पर एक इंग्लिश में लस्ट शब्द को देखते हैं, तो ये वास्तव में एक व्यभिचार को और इस प्रकार की जो लालसाओं को यहाँ पे उसको दर्शाता है, उसका अर्थ जो है। That's the reason why in NKJV version it is written as desire, but desire itself is not correct word. When we see the root word, we understand that the desire has crossed its limits, so it has become lust. So the moment there is lust, the temptation will definitely motivate or inspire or drive or trigger to contemplate plans and schemes. And because if lust and temptation is pregnanted, and then it brings forth sin. That's what James says in chapter 1 verses 14 and 15. और यहाँ पे हम याकूब की किताब उसके एक अध्याय उसके 14-15 में इस प्रकार देखते हैं, यहाँ पर जो अभिलाषा है वो प्रलोभन के साथ मिलकर पाप को एक गर्भ में लेकर आ जाती है, और पाप जब गर्भ में आ जाता है तो उसके बाद वो जन्म लेता है और वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इस प्रकार हम A baby is born maybe after 7 months or 9 months, not in 2 months or 3 months. तो हम देखते हैं कि जो भी बच्चा पैदा होता है वो 9 महीने में पैदा होता है, कोई भी बच्चा 2 या 3 महीने में पैदा नहीं होता है। So before sin is shaped, lust and temptation will lead to planning and scheming and programming. तो यहाँ पे जब एक पाप का जन्म नहीं हुआ होता है तो प्रलोभन के स्तर पर वहां पर एक योजनाएं चलती रहती है और मनुष्य अपनी कल्पनाओं में पाप के बारे में विचार शुरू कर देता है। That is the reason why I said backsliding is never sudden. When a believer commits a sin, it's not all of a sudden. There is some planning, some scheming, some pregnancy of evil thoughts mingled with the temptation has taken place. और हम जानते हैं कि जैसे पीछे हटना अचानक से नहीं होता है, वो एक कदम कदम चलने वाली घटना होती है, वैसी पाप भी अचानक से होने वाली घटना नहीं होती है, परंतु पाप के पीछे भी कुछ प्रलोभन और कुछ कल्पनाएं और उस प्रकार की विचार काम करते रहते हैं जो उसकी तैयारी करते रहता है। So please turn with me to Psalm number 19 verses 12 and 13. I will read it for you and then in Hindi. Psalm number 19 verses 12 and 13. Who can understand his errors? Cleanse me from secret faults. Keep back your servant also from presumptuous sin. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless and I shall be innocent of great transgression. और भजन संहिता की किताब उसका 19 अध्याय उसके 12-13 में हम यूँ देखते हैं, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। See, here it begins with errors. Verse 12, errors, and then secret faults, and then verse 13, presumptuous sins, and then the last statement, great transgression. These are all 4 steps: errors, to secret faults, to presumptuous sins, and great transgression. और यहाँ पर 4 स्तर के हम पापों को समझ सकते हैं। पहला भूल चूक, उसके बाद गुप्त पाप, उसके बाद जो ढिठाई के पाप, और उसके बाद यहाँ लिखा है बड़े अपराध। So initially it only looks like an error, a small error, not like a big sin. And then slowly it leads to secret faults, do things secretly. Why you don't do it publicly? You will do it secretly. So errors, and then doing the same errors in secret,
as you continue to do it and then openly do the same, presumptuous sins means sins which are done in open, then it leads to great transgression. और यहाँ देखते हैं कि भूल चूक बहुत छोटी सी जान पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही भूल चूक जो गलती होती है, ये छोटी सी गलती गुप्त पाप के रूप में वो बनी रहती है। और जब एक इंसान हमेशा इस प्रकार की भूल चूक गुप्त पापों में करते रहता है, उसके बाद वो बड़े अपराध भी कर देता है बाद में। See the steps: errors, secret faults, presumptuous sins, and great transgression. तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इंसान शुरू में भूल चूक करता है, उसके बाद भूल चूक के बाद गुप्त पाप करता है, और उसके बाद वो ढिठाई के पाप करने लगता है, और उसके बाद बड़े अपराध करने लगता है। So presumptuous sins means doing sins publicly. Secret sins means privately, without anybody watching, in the darkness all alone. Great transgression means, and you just don't care it, you just don't bother and publicly do it shamelessly. और ये जो गुप्त पाप होते हैं, ये मनुष्य छुप के करता है, परंतु जो ढिठाई के पाप होते हैं वो मनुष्य लोगों के सामने करने लगता है। और जो बहुत बड़े अपराध होते हैं, उस समय वो मनुष्य सब कुछ सोचना बंद कर देता है कि किसी को क्या फर्क पड़ता है, उस प्रकार पाप करने लगता है। So let us join James 1:14 and 15 and Psalm number 19 verses 12 and 13. This आगे cycle, the steps goes like this. अब हम याकूब की किताब उसके 1 अध्याय के 14-15 और भजन संहिता 19 का जो 12 और 13 है, इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम इस प्रकार का अध्ययन कर सकते हैं। So lust and temptation, that is the first stage, and then second stage is error, third stage is secret faults, and it leads to sin, and next stage is presumptuous sins, and further stage is great transgression, and the end is death. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे शुरुआत में अभिलाषा और प्रलोभन आते हैं। ये अभिलाषा और प्रलोभन भूल चूक की ओर लेके जाते हैं। भूल चूक एक इंसान को गुप्त पापों की तरफ लेके जाते हैं। गुप्त पाप जो है इंसान को पाप कराते हैं। उसके बाद वो पाप जो है ढिठाई के पापों में बदल जाता है, और ढिठाई के पाप बड़े अपराधों को ले आते हैं, और ये बड़े अपराध मृत्यु को उत्पन्न करते हैं। Backsliding is never sudden. इसीलिए जो पीछे हटना अचानक होने वाली घटना नहीं होती है। Begins with the thoughts ये विचार से शुरू होता है, and then take decisions. और उसके बाद फैसले लिए जाते हैं। Slowly they become deeds उसके बाद वो हमारे कामों में आ जाता है, and then becomes habits और उसके बाद वो हमारी आदत बन जाती है, and it becomes an attitude और बाद में वो हमारा रवैया बन जाता है, and then it becomes a character और उसके बाद वो हमारे गतिविधियों में दिखने लगता है, and then personality. Personality means mind, heart and will together. और उसके बाद हमारे व्यक्तित्व में वो बातें नजर आने लगती है, अर्थात हमारे मन, हमारे हृदय और हमारी इच्छाओं में। That it leads to destination. और इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक मंजिल तक हमें ले जाता है। Please remember, every thought definitely has its own consequences if we do not keep in proper control or proper watch. यस अंकल, प्लीज रिपीट अंकल। Every thought has its own consequences if we do not keep it in control or have a proper watch over it. अगर कोई भी विचार होते हैं प्रियो, उसको उसका एक हमें वो एक फैसले तक लेके जाता है, और अगर हमारे उसके ऊपर विचार के ऊपर नियंत्रण नहीं रहा, तो हम कभी भी आगे कहीं भी फैसले की तरफ जा सकते हैं। In second Corinthians chapter 10, there's a wonderful verse. I want every one of us to turn with me to 2 Corinthians chapter 10. आइए मेरे साथ निकाले हम एक महत्वपूर्ण वचन जो है दूसरा कुरिन्ती की किताब उसके 10 अध्याय में। Here Apostle Paul says, verse 5, the second part, bringing every thought into the captivity to the obedience of Christ. 2 Corinthians chapter 10, verse 5, second part. और यहाँ दूसरा कुरिन्ती उसका 10 अध्याय का जो 5वां वचन है, उसके जो 5वें वचन के दूसरे भाग को हम देखते हैं कि यहाँ हर भावना को कैद करके हमें मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। Every believer must learn to bring every thought into the captivity to the obedience of Christ. और यहाँ हर विश्वासी को अपने विचारों को और भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाना सीखना चाहिए।
because every thought is like a seed. When we sow the seed, it looks like just one grain of a seed, but if it brings forth the fruit and it becomes a big tree, it's very difficult to root it out. और ये जो विचार होते हैं वास्तव में एक बीज के समान होते हैं। वहीं से शुरुआत होती है और बीज से बाद में हम फल को देखते हैं, और फल से तो बाद में बहुत सारे बीज आकर एक बड़े वृक्ष को हम देखते हैं। So backsliding is never sudden. इसलिए पीछे हटना जो है वो एक अचानक से होने वाली घटना नहीं होती है। We are trying to understand the doctrine on sin और हम जो है पाप के सिद्धांत को अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं, because every one of us, we have Adamic nature within us, a rebellious nature within us, awful sinful nature within us. We don't keep that sinful nature under control through cross. We will have to face a number of issues. और हमारे अंदर चूंकि हम आदम से हैं तो आदम का स्वभाव हमारे अंदर पाया जाता है। आदम के अंदर का जो पाप में स्वभाव है, पाप की जो सोच है, पाप का जो विचार है, इस प्रकार के स्वभाव हमारे जीवन में पाया जाता है। इसलिए हमें इस स्वभाव को मसीह के क्रूस पर हमें चढ़ाना चाहिए। So let us study few thoughts about transmission of sin, because there are different positions or different schools of thought about this particular doctrine called transmission of sin. और पाप के हस्तांतरण के बारे में हम कुछ बातों को देखेंगे, जिसका विभिन्न पद इसके बारे में हम देखते हैं और विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण को भी देखते हैं। Little tough, difficult to understand, but as a Bible teacher, as a preacher, you must definitely know. और चूंकि हम एक बाइबल के शिक्षक प्रचारक हैं, हालांकि ये विषय कठिन है, परंतु फिर भी हमें इसे समझना चाहिए। Even if you don't understand, at least try to listen, try to understand, and work on it. It will definitely take some time to understand. It's not easy. और जरूर हम इसे समझने की कोशिश करें। आसान तो नहीं होगा, परंतु हम ये कुछ समय लेगा, लेकिन हम इसे समझने की कोशिश करें। There are two schools of thought. One is called Calvinism, and the other is called Arminianism. और यहाँ पर दो प्रकार के विचारों को देखते हैं, जिसे हम एक को कैल्विनिज्म और दूसरे को आर्मीनियज्म कहते हैं। So to remember Calvinism, TULIP, called tulip. T stands for total inherited depravity. U stands for unconditional election. L stands for limited atonement. I stands for irresistible grace of God. P stands for perseverance of saints. I'm sorry, I couldn't translate in Hindi. I was not finding time. Anyway, it is not just so, because they are technical. It is very difficult to find the Hindi words. Brother, please read in English as it is. तो कैल्विनिज्म को हम TULIP यानी ट्यूलिप भी कहते हैं। इसमें टी जो है टोटल इनहेरिटेड डिप्रेविटी है, और यू जो है अनकंडीशनल इलेक्शन है, एल लिमिटेड अटॉनमेंट को दर्शाता है, आई जो है इररिसेप्टिबल ग्रेस ऑफ गॉड को दर्शाता है, और पी जो है प्रिजर्वेंस ऑफ द सेंट को दर्शाता है। These are all the great theologians. They have been debating on this issue for several ages, I tell you. और ये कुछ ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारे जो बाइबल के व्याख्याता हैं उन्होंने बहुत सदियों तक आपस में बहस किया है, और इसमें एक प्रकार से कहना चाहिए वाद विवाद किया है। I'm not trying to solve this great debate happening among the theologians, but I want you to understand how to have a biblical balanced understanding of the truths concerning salvation. और यहाँ पर हम बहुत सारे जो बाइबल के व्याख्याता हैं उनके इन वाद विवाद के विषयों को हम नहीं देखना चाहेंगे, परंतु हम थोड़ा सा इस जो जो पाप की जो इस बैलेंस है उसको हम समझने के लिए यहाँ पर कुछ बातें सीखेंगे। Normally, these things are not told from the pulpit because people can't understand this. और साधारणतः ये बातें पुलपिट से प्रचार नहीं की जाती क्योंकि लोगों की समझ में नहीं आएगा। But every Bible teacher must know. Otherwise, without knowing or without having proper understanding of the scriptural truths, we will try to talk in whatever comes to our mouth. और हम जो बाइबल के जो प्रचारक हैं, शिक्षक हैं, हमको अच्छे से इस चीज की जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो हम अपने पुलपिट से खड़े होकर कुछ भी अपने जुबान से जो बातें आएंगी हम कहते जाएंगे। So, what I suggest you, I did lot of work on this particular topic. We will have a discussion
over the discussion, we will be able to understand more and more. और ये जो है ये अध्ययन के इस विषय में हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है और जितना अधिक हम इस पे बातें करेंगे हम बातें समझ पाएंगे. If you have any question to ask, please write down in a piece of paper, otherwise you may forget. And when we find time, we will sit, we will discuss, and we will try to understand the best possible truth hidden in the scriptures. और जरूर हम इन विषयों का अध्ययन करें और अगर इसमें कुछ सवाल आते हैं तो आप उससे लिखें ताकि हम आने वाले समय में उस वचन को अध्ययन करके और गहराई से इसको समझ सकें. To cut the long story short, I have kept you two pictures here. और अधिक समय नहीं है इसलिए इसे छोटा कहानी बनाते हुए यहाँ पे देखते हैं कि दो चित्र यहाँ पे हैं. Calvinism says that God is responsible, I am not. और काल्विनिज्म इस बात को बताता है कि जो कुछ हो रहा है उसके लिए परमेश्वर जिम्मेदार है, मैं नहीं हूँ. It's like a cat carrying its babies. जैसा कि बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में लेके जा रही है. If baby falls down, it's not the responsibility of the baby, it is the responsibility of the mummy. और यहाँ पर अगर ये बिल्ली का बच्चा गिर जाए तो ये बिल्ली के बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है परंतु बिल्ली की माँ की जिम्मेदारी है क्योंकि उससे वो गिर गया. In our understanding, how we say is God is sovereign. Without God's permission, nothing happens. Anything happened, God is responsible. I'm not. That's a Calvinistic position. और काल्विनिस्टिक विचारधारा वाले ये कहते हैं क्योंकि परमेश्वर सार्वभौमिक है, वो सर्वज्ञानी है, उसके नियंत्रण में सब कुछ होता है, इसलिए अगर कुछ हो रहा है तो वो उसके अनुसार ही हो रहा है या उसकी इच्छा से हो रहा है, ऐसा करके ये सिद्धांत वाले कहते हैं. There is another position called Arminianism. They say it's something like a monkey catch. और यहाँ पर जो आर्मेनिज्म वाले सिद्धांत वाले कहते हैं कि जैसे इसको इस चित्र से हम समझ सकते हैं जिसमें एक बंदर है जो बंदर का बच्चा वहां लटक रहा है. If baby of this monkey falls down, whose responsibility is this? Is this the mummy or baby? अब यहाँ पर हम देखते हैं जो बंदर का जो बच्चा अगर गिर जाए तो किसकी जिम्मेदारी है, माँ की या बच्चे की? Here the responsibility is baby. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम सोचेंगे कि बच्चा जो है वो बच्चा बंदर जिम्मेदार है. These two are diametrically opposite to each other. और ये जो है अगर आप देखें तो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत एक प्रकार का दशा को दिखाते हैं. One school of thought says that God is totally responsible, I am not. एक सिद्धांत ये बता रहा है कि पूरा परमेश्वर ही जिम्मेदार है, हम कोई जिम्मेदार नहीं. The other school of thought says that I am responsible, God is not. और दूसरे सिद्धांत में हम ये देख रहे हैं कि हम जिम्मेदार हैं, परमेश्वर इसमें कोई जिम्मेदार नहीं. But if we carefully study the scripture, what I understand is both God is responsible in the area where God is, and I am responsible where in the area I fall. और यहाँ पर हम वचन से कुछ बातों को ऐसा हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर जहाँ पर है वहाँ पर परमेश्वर का जो जगह है वो परमेश्वर जिम्मेदार है, और जब हम अपनी दशा को देखते हैं तो हम जहाँ पे रहते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं. That means God is holy, God can never commit sin, God is always holy. यानी कि परमेश्वर अपने स्थान पर पवित्र है क्योंकि परमेश्वर पवित्र होता है. God never commits sin. परमेश्वर कभी पाप नहीं कर सकते. But I am a sinful person. परंतु मैं एक पापमय व्यक्ति हूँ. If I commit sin, I am responsible, not God. और इसीलिए पाप जब मैं करता हूँ तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ क्योंकि मैंने पाप किया है. परमेश्वर पवित्र है, वो जिम्मेदार नहीं है. But when I am holy, normally I cannot be holy. When I am holy, then definitely God is responsible, because man all by myself, I cannot be holy. Only with the strength of God, with the strength of the Holy Spirit, with the power of the Holy Spirit, I can be holy. और जब मनुष्य कहता है कि मैं पवित्र हूँ तो उस समय हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रता की दशा में आता है, इसलिए वो कह सकता है कि परमेश्वर की वजह से मैं पवित्र हूँ. So man is totally inherited depravity by birth. That's what Calvinism says. और ये जो काल्विनिज्म ये बताता है कि मनुष्य जो है वास्तव में पूरे आनुवंशिक रूप से ही गिरा हुआ होता है. But Arminian says no, 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 no. Man is not totally depraved, but partially depraved, they say.
और आर्मिनिज्म वाले बोलते हैं कि नहीं, मनुष्य ऐसा नहीं है, परंतु वो कुछ अंश तक वो अपने अपने हिसाब से गिरा हुआ होता है। So Calvinism says God elected me not basing upon who I am. Just because I'm good and so God selected me. Maybe I'm bad and so God did not elect me. That's not the case. God elects me unconditionally, whoever I am. That's what Calvinism says. और काल्विनिज्म भी बताता है कि हमको परमेश्वर ने हमारे अच्छे या बुरे होने के अनुसार नहीं चुना है, परंतु उसने अपनी इच्छा से हमें चुना है। But Arminianism says that God knows, because God has foreknowledge, because God knows that I'm able, and so God has selected me. So God's selection is conditional. That's what Arminianism position says. और आर्मिनिज्म सिद्धांत ये कहता है कि परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को देखकर चुनाव करता है और हमारे जीवन को वो पूर्व ज्ञान के द्वारा पहले से जानता है कि हम अच्छे हैं या बुरे, और उस अनुसार परमेश्वर हमें चुनता है, ऐसे आर्मिनिज्म वाले कहते हैं। And third one is limited atonement. The atonement, Jesus died on the cross of Calvary. Only to the elected people will be atoned, but other people there, they will not be atoned. So Jesus died on the cross of Calvary only for a set of people, a few people, those who are elected before the foundations of this world. Only to them the blood of Jesus Christ will cleanse, but others not. That's what Calvinistic says, limited atonement. और कैल्विनिज्म के सिद्धांत वाले कहते हैं कि जो बलिदान के कारण छुटकारा हुआ है उसकी एक सीमा है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान हुआ है क्रूस पर, उससे सभी लोगों की क्षमा नहीं हुई है, परंतु केवल उन लोगों की क्षमा हुई है जो पहले से परमेश्वर के जो उसके सूची में थे कि वे बचाए जाएंगे, और केवल उन्हीं बचाए हुए लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ है। ऐसे एक सीमा वाला बलिदान होने के बारे में कैल्विनिज्म बताता है। Arminianism position says that no, the blood of Jesus Christ is for everybody. Whoever receives, whoever comes to cross, whoever believes, they will be saved. और आर्मिनिज्म भी बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान हुआ है उसके कारण जो प्रायश्चित हुआ है वो सबके लिए है। जो यीशु मसीह के पास आ जाए, जो उसके लहू के लिए प्रार्थना करे, वो सबके लिए वो प्रायश्चित हो जाएगा, ऐसा आर्मिनिज्म बताता है। So Calvinism says irresistible grace. When God elected me before the foundations of this world, because of that grace is so irresistible that I cannot reject. So I have to definitely accept the Lord Jesus Christ, because I am predestined. I am elected before the foundations of this world without my choice, without my permission. That's what they say. और कैल्विनिज्म बताता है कि हमारे बिना किसी इच्छा से परमेश्वर के उस महान अनुग्रह के द्वारा हम लोग पहले से ही चुने गए हैं, और परमेश्वर ने जैसे पहले से ही हमें सृष्टि के पहले से चुन लिया था, तो उसका अनुग्रह हम पर होना ही था, ऐसा ये कैल्विनिज्म हमको बताता है। So irresistible. So we cannot resist the grace of God, Calvinism says. Arminius says yes, we can reject. और यहाँ पर कैल्विनिज्म बताता है कि परमेश्वर के जो अनुग्रह को हम यहाँ पे रोक नहीं सकते, लेकिन आर्मिनिज्म बताता है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसको हम रोक सकते हैं, अपने ऊपर आने से रोक सकते हैं, ऐसा आर्मिनिज्म बताता है। So Calvinism says whoever is saved, finish. They are saved once for all, and that salvation cannot be cancelled. Ultimately, he will end up in heaven, and nothing can stop. और ये जो Salvation is eternal. Salvation is eternal. और कैल्विनिज्म वाले बताते हैं कि एक बार जो बच गया, जो पाप से क्षमा पा गया, उद्धार पा गया, वो हमेशा के लिए है, अब वो हमेशा के लिए पाप से उद्धार पा गया है, ऐसा कैल्विनिज्म बताता है। But Arminius says no. Salvation can be lost. Salvation is not eternal. Salvation is temporary. You have to work on your salvation. We don't know whether you definitely go to heaven or not. It all depends upon your holiness. और ये जो आर्मिनिज्म बताता है कि उद्धार जो होता है वो आपके कामों पर निर्भर करता है, और आपको आपके उद्धार के लिए हमेशा काम करने की जरूरत है ताकि आप उसके अनुसार अपने उद्धार को बनाए रखें, ऐसा आर्मिनिज्म बताता है। In fact, these two things are diametrically opposite to each other. और ये जो है वास्तव में देखेंगे तो एक प्रकार के अलग अलग दशाओं को ये दोनों चीजें दिखाती है।
But when we carefully study the scriptures, we will definitely find some truth in every statement, but not absolutely we can take it that statement as it is. और यहाँ हम देखते हैं कि एक प्रकार से अध्ययन करते समय लगता है कि यहाँ अपनी जगह सही है, परंतु हम उसको अध्ययन करने से उसके गहराई को जान सकते हैं कि ऐसा सही कहना भी सही नहीं है। But the words used by both of them, they are very tricky. So it is difficult to either to say yes or to say no. और चूंकि बहुत ही चालाकी के साथ इन दोनों मतलब जो सिद्धांतों में लोगों ने शब्द को उपयोग किया, इसलिए इसे सही या गलत कहना बहुत मुश्किल है। I was actually very angry with this so-called Calvin. और कैल्विन के बारे में, हम कैल्विनिज्म के बारे में देखते हैं कि इसके लिए मुझे बहुत ही क्रोध या गुस्सा आता है। Why he formulated all these very tricky kind of words? क्यों इन्होंने इस प्रकार की जो चतुराई करके एक तार्किक शब्दों को यहाँ पे डाल दिया है। Actually, when I come to know the truth, I've changed my mind. और जब मैंने सत्य को जाना, तब मेरा मन वास्तव में फिर से बदला। Let me give you little background story. आइए हम इसके कुछ पीछे के कहानी को समझे। There is a great theologian by name Saint Augustine, BC 354 to 430. Not BC. I'm sorry. This is during the time of Christ. It's not BC. I think it's a scribal error. So I think it is AD uncle. Yeah, it is. It is AD. 1 minute. Better remove this BC to avoid confusion. Is it okay now? Yeah. So Saint Augustine around 354 to 430. और हम यहाँ देखते हैं कि एक जो बाइबल के महान व्याख्याता होते थे, संत ऑगस्टिशियन, उनके बारे में हम देखते हैं is a great man of God. Is a great Bible scholar. और ये बाइबल के बहुत ही बड़े व्याख्याता थे, जो 354 से लेकर 430 जो है ईसा के मध्य में ये वास करते थे। He is a very good theologian and philosopher. He was the bishop of Hippo, North of Africa. So he says all human beings inherit Adamic fallen nature by birth, which is true because Romans chapter 5 verses 12, 13, 14 says the same thing. All human beings inherit Adamic fallen nature by birth. Man is totally depraved. That is called in Latin sola gratia. It is a divine initiative by grace alone. Sola gratia means by grace alone. The grace of God alone can save human being. No merit of human beings of any kind. Regeneration precedes faith. और ये जो संत जो अगस्टिशियन ये बताते हैं, ये जो महान जो बाइबल के व्याख्याता है और एक दर्शन शास्त्री हैं और ये बिशप भी हैं नॉर्थ अफ्रीका के, ये बताते हैं कि सारा मनुष्य जो है आदम के कारण एक गिरे हुए स्वभाव से वो जन्म लेता है। जन्म से ही आदम में वो गिरा हुआ रहता है और मनुष्य को पूरी रीति से अधर्मी और पापी है, जैसा कि रोमियो की किताब उसके 3 अध्याय के 10, 11, 12 में लिखा है। और I agree. Yeah. और यहाँ पे वो बताते हैं कि जो सोला ग्रेशियल लिखा है, इसका मतलब केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो मनुष्य को बचा सकता है, ऐसा वो यहाँ पर बताते हैं। So I agree every statement given by Saint Augustine. और मैं जो संत अगस्तिन ने जो भी यहाँ पर अपनी टिप्पणी की है, उन सब से मैं सहमति देता हूँ। What he says, all human beings inherit Adamic fallen nature by birth. Agreed. और यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सारे मनुष्य जो है जन्म से ही आदम में गिरे हुए स्वभाव के होते हैं। Man is totally depraved means man cannot be saved without the grace of God. Man cannot be saved by his works. Man is saved only by grace, by faith. और ये जो यहाँ पर इन्होंने बताया कि मनुष्य टोटल मतलब पूरी रीति से अधर्मी है या पापी है, इसलिए मनुष्य को उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत होती है, और उस अनुग्रह जब उनके जीवन में काम करता है, वो उस अनुग्रह के द्वारा विश्वास करने से उनका उद्धार होता है। Grace of God alone can save human being. और यहाँ वो कहते हैं कि केवल
अनुग्रह के द्वारा ही मनुष्य बच सकता है। No merit of humans of any kind. यहाँ पर व्हाट दैट मीन अंकल? That means our righteousness is like filthy rags before the presence of God. इसका मतलब है कि कोई भी मनुष्य जो है अपने कामों से परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं हो सकता है। So this is what Saint Augustine said. और ये जो है संत अगस्तीन ऐसा कहते हैं। John Calvin simply improved upon the same truth. He did not add anything. Whatever Saint Augustine said, he said exactly the same. He is from 1509 to 1564 AD. और जॉन कॉल्विन जो है वो भी लगभग संत अगस्तिन के विचारों को ही आगे उसी से समान रखते हैं जो 1509 से लेकर 1564 के बीच में थे। So he is a French theologian, he is a pastor and a reformer in Geneva. और ये जो है एक फ्रेंच बाइबल के व्याख्या थे और पास्टर थे जिनोवा में। So he is the one who formed many Christian doctrines called as Christian theology. Later they were called as Calvinism. और इन्होंने ही बहुत प्रकार के मसीही सिद्धांतों को निर्माण किया था और मसीही सिद्धांतों को लिखा था जो बाद में कैल्विनिज्म कहलाया। He exposed so many things about the doctrine of predestination and sovereignty of God. और इन्होंने बहुत सारे जो मनुष्य के जो एक एक परिणाम निकलेगा उसके बारे में और जो परमेश्वर की सार्वभौमिकता के बारे में बहुत कुछ लिखा है। Theologians say that Calvin simply he was influenced and he improved and elaborated Augustinian's works. और लोग बताते हैं कि जो कैल्विनिस्ट है ये जो इनका सिद्धांत है ये वास्तव में संत अगस्तिन के जो भी विचार हैं उसी से ही इन्होंने प्रेरणा पाकर ये सब लिखा है। This is man by name Jacob Arminius or James Arminius. He is from 1560 to 1604. He is not of the same contemporary of John Calvin. He is after John Calvin. This James Arminius, he is a Dutch theologian and he served as a professor in theology at University of Leiden. He wrote many books and treatises on theology opposing Calvin's work. और यहाँ पे हम जेकब आर्मीनियस या जेम्स आर्मीनियस के बारे में देखते हैं जो 1560 से 1609 के बीच में थे। ये एक डच बाइबल के व्याख्या थे और इन्होंने 1603 के समय से एक बाइबल के एक व्याख्याता के रूप में लेडन के यूनिवर्सिटी में काम किया था और बहुत सारी किताबें लिखी थी। और इन्होंने बहुत सारी जो सिद्धांत लिखी थी वो कैल्विन्स के जो कामों के विरोध में या उल्टा लिखा था। Exactly. He opposed Calvinistic work. और इन्होंने कैल्विनिस्टिक जो सिद्धांत हैं उसके विपरीत बातें लिखी थी। Those who followed James Arminius, they have formed all these things. और यस अंकल व्हाट मीन्स? There were few disciples who followed James Arminius. They have formed all these, Arminian's philosophy, partial depravity, conditional election, unlimited atonement, and all these things, And basing on this, the opposite is this. Actually, John Calvin did not formulate all these things, but whereas Arminius disciples, they have formed all these things. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी जेम्स आर्मीनियस के जो चेले थे और उनको जो उनके जो अनुयायी थे उन्होंने बहुत सारे इसके विभागों को बनाया और आर्मीनियस के सिद्धांत का मतलब उनको लिखा और कैल्विन्स के वर्क का विरोध में उन्होंने लिखा है। There is one more theologian by name Pelagius, 354 AD to 420. His understanding is Adam's fall is limited to Adam only. और यहाँ पर और एक बाइबल के जो व्याख्याता हैं पिलेजियस के बारे में देखते हैं जो 354 से 420 के बीच में थे। और ये भी जो है आदम के जो गिरे हुए केवल आदम से ही गिरा हुआ ऐसा एक सिद्धांत बताते हैं। All humans are like Adam before fall. और यहाँ ये बताते हैं कि जितने भी मनुष्य थे वो गिरने से पहले सब लोग आदम के जैसे ही थे। The grace of God facilitates for moral perfection, but without grace, man can be perfect. That's what he says. और वो कहते हैं कि बिना परमेश्वर के अनुग्रह के कोई भी मनुष्य जो है वो सिद्ध
नहीं हो सकता है। और We don't, परमेश्वर yeah, we don't accept this truth. We reject this truth straight away. और हम इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं। And it was also declared as heretic at the Church Council of Ephesus in AD 431. और इसको हम देखते हैं अंकल, आई थिंक देयर इज a line hidden below line. Acha, it is treated as a wrong doctrine by the Church Council in Ephesus AD 431. और हम देखते हैं एडी 431 में ये जो है इसको इफिशियंस की जो चर्च की कलीसियाओं में इसको गलत सिद्धांत के रूप में घोषणा किया गया है। And later, 100 years later, there was one more theology called semi-Pelagius. और उसके 100 साल के बाद में हम फिर देखते हैं एक सेमी पेलिजियस करके एक व्याख्याता के बारे में। So what they say, all human beings inherit Adamic nature, fallen nature by birth, we agree. और यहाँ पे वो कहते हैं कि सारे मनुष्य जो है जन्म से ही आदम के गिरे हुए नेचर के आदम के गिरे हुए स्वभाव में पैदा होते हैं। But a residual moral capacity is within self to cooperate the grace of God. परंतु वे कहते हैं कि थोड़ा सा एक नैतिक जो क्षमता है उनके अंदर बचा हुआ होता है जो परमेश्वर के अनुग्रह को उनके जीवन में सहयोग करने के लिए सहायता करता है। No doubt, God's grace is absolutely necessary for redemption. और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मनुष्य के छुटकारे के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की बिल्कुल जरूरत है। But they say, not alone by the grace of God, but God's grace plus human will. परंतु यहाँ पे बताते हैं कि केवल परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ मनुष्य की मानव की इच्छा भी यहाँ जरूरी है। So this was also declared as a wrong doctrine or heretic in the Council of Orange AD 529. और यहाँ पर भी हम इसे देखते हैं कि इसको एक गलत सिद्धांत के रूप में यहाँ पर बताया गया है। So we have seen three kinds of teachings. One is Arminius, second one is Pelagius, third one is semi-Pelagius. और यहाँ पे हम 3 प्रकार के सिद्धांतों को देखते हैं, आर्मीनियस और पेलेजियस और सेमी पेलेजियस। So let me give you more clarity by explaining once again like this. और इसको ऐसे वर्णन करने से हम और थोड़ा स्पष्ट समझ पाएंगे। Calvinistic view says human beings freely choose to do evil. और कैल्विनिस्टिक जो दृष्टिकोण ये बताता है कि मनुष्य जो है वो किसी भी प्रकार के पाप को चुनने के लिए स्वतंत्र है अपने स्वभाव से। That means I commit evil by my own free choice, not God forced me to do evil. इसका मतलब है कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार पाप करता हूँ, परंतु परमेश्वर मुझ पर कोई भी पाप करने का दबाव नहीं डालते हैं। Pelagius or Arminius, they agree the same. और यहाँ पर पिलेजियस और आर्मीनियस भी हैं, इसी सिद्धांत इसके साथ सहयोग करते हैं इस विषय का। Calvinist view says humans cannot freely choose to do good or moral to please God because humans are totally corrupted by birth. That is called original sin. और ये जो कैल्विनिस्टिक सिद्धांत वाले बताते हैं कि जो मनुष्य है वो जन्म से ही परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अच्छे नैतिक विचारों का नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य जो है जन्म से ही पूरी रीति से भ्रष्ट होता है। But Pelagius, they say that humans can freely choose to do good. That means moral to please God. Adam's sin has nothing to do with us, just like Adam before fall. This is what Pelagius or Arminius stand. और पिलेजियस आर्मीनियस दृष्टांत ये बोलते हैं कि मनुष्य जो है वो सभी भले काम करने के लिए स्वतंत्र होता है और वो काम करता है जिससे परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। और आदम का जो पाप है वो हमारे साथ नहीं होता है और हम ऐसे होते हैं जैसे आदम पाप करने के पहले था। So Calvinistic view says God has to initiate the process of salvation. Humans are spiritually dead. और काल्विनिस्टिक दृष्टिकोण बताता है कि परमेश्वर ने उद्धार की शुरुआत की है और क्योंकि मनुष्य जो पूरी रीति से आत्मिक रीति से मरा हुआ है। So Pelagius view or Arminius view says that humans have to initiate or cooperate the process of salvation with God. और पिलेजियस आर्मिनस भी बताता है कि मनुष्य जो है परमेश्वर की जो
उद्धार का जो कार्य उन्होंने शुरू किया है उसको शुरू करने में वो सहयोग करता है। So salvation by grace through faith, not by works, Calvinistic view. और काल्विनिस्टिक जो दृष्टिकोण ये बताता है कि मनुष्य का जो उद्धार होता है वो अनुग्रह के द्वारा होता है, विश्वास के द्वारा नहीं होता है। नहीं, विश्वास से द्वारा होता है, अनुग्रह के द्वारा होता है, थ्रू फेथ, नॉट बाय वर्क्स। ओके, यहाँ पे कैल्विनिस्टिक दृष्टिकोण वाले बताते हैं कि मनुष्य का जो उद्धार होता है वो अनुग्रह और विश्वास से होता है, कामों के द्वारा नहीं होता है। Yes, but here Pelagius or Arminius stand is salvation by faith plus works. और आर्मिनियस और प्लेजियस दृष्टिकोण बताते हैं कि मनुष्य का उद्धार विश्वास और काम दोनों मिला के होता है। So Roman Catholic stand is also of the same, Pelagius or Arminius stand. और रोमन कैथलिक जो विश्वासी जिस सिद्धांत को मानते हैं ये भी आर्मिनियस और प्लेजियस प्रकार का ही होता है। So semi-Pelagius, what they say, humans can freely choose to do good to please God, although humans are partially corrupted by birth, by original sin, not completely, not totally depraved. और यहाँ पे सेमी प्लेजियस सिद्धांत वाले बताते हैं कि मनुष्य जो होता है वो अच्छे काम करने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो अपनी इच्छा रखता है, और मनुष्य जो है वो थोड़ा सा भ्रष्ट होता है, जन्म से पूरी रीति से नहीं होता है। So they say humans have to initiate or cooperate the process of salvation with God. They call it prevenient grace. और यहाँ पे वो बताते हैं कि मनुष्य जो है परमेश्वर के जो उद्धार के काम परमेश्वर ने शुरू किया है उसको शुरू करने के लिए और सहयोग करने के लिए वहाँ सहयोग देता है, जो हम इसको एक प्रकार का अनुग्रह उनके में है ऐसा वो कहते हैं। So these days, this is very much famous, prevenient grace. This is by semi-Pelagius stand. और यहाँ पर वो व्हाट दैट मीन अंकल, प्रिविनेंट ग्रेस? वो मेरे को पता नहीं है, उसको प्रिवेनेंट ग्रेस बोलता है। ओके अंकल, तो यहाँ पर सेमी पिलेजियस सिद्धांत में हम देखते हैं कि वो प्रेविनेंट ग्रेस के बारे में बताते हैं। So there is another school of thought by saying hyper Calvinist. They say God is responsible for sin, not me. और भी हैं जो हाइपर कैल्विनिस्ट जो है वो ये बताते हैं कि परमेश्वर ही सारे पापों के लिए जिम्मेदार है, हम नहीं हैं। This is wrong. God is not the author of sin. और ये बिल्कुल गलत है क्योंकि परमेश्वर कोई भी पाप का निर्माता नहीं है। So I think we will close here. There's much more to say. Maybe when we come to doctrine on salvation, we will discuss more. Maybe it is already heavy for you. आज के लिए इतना काफी है, और आगे हम जब और उद्धार के सिद्धांत के बारे में देखेंगे तो इसका अध्ययन करेंगे। Please don't share all these things to a common believer. They will be confused. They will never understand. But you, as a teacher, you must know. You have to do a very good homework. Otherwise, you will not be able to share the word properly. और हम जो बाइबल के शिक्षक होने के नाते इसे अच्छे से अध्ययन करना है, परंतु पुलपिट से हम साधारण विश्वासियों को इसको प्रचार नहीं करना है, परंतु नहीं तो वे समझ नहीं पाएंगे। ये हमारे समझने और स्पष्टीकरण के लिए है। So maybe you are listening for the first time. और हो सकता है ये इन सब विषयों को आपने पहली बार सुना होगा। But if you can listen the same message because it is recorded again and again, put a paper and then do the homework, you will definitely understand, you will appreciate that. और जब हम इसे बार बार अध्ययन करेंगे और कॉपी में लिख लिख कर हम पढ़ेंगे, तो बार बार अध्ययन करने से हम इस बातों को समझ पाएंगे और इसकी प्रशंसा करेंगे। So predestination, foreknowledge, election, these are all very, very important, but complicated. We won't understand just like that because I struggled for years, but God by grace gave me little understanding so that I could explain you. और ये जो विषय है गंभीर विषय, इनको समझने के लिए मुझे काफी साल लगे, और अध्ययन करने के बाद ही मुझे ये सब समझ में आया है। When we discuss, you ask questions, we will discuss, we will try to understand. We will definitely gain more knowledge so that when we teach the scriptures, we will not speak just like that, but with proper carefulness of the understanding scriptures, we should be able to share. और जरूर हम आपस में डिस्कस करें, और कोई विषय नहीं समझ में आता है तो उसे बातचीत करें ताकि हम इसे अच्छे से समझकर हम आगे बढ़ सकें। Maybe in the next class, we will try to understand more and more. और आगे की क्लास के अध्ययन में हम
तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे सीख So सकें। with this, we are completing the doctrine on sin. तो इस प्रकार हम पाप के सिद्धांत को यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं। So maybe God willing, we will study. Um, uh, so with this, we have completed the transmission of sin of different positions. So we have completed all these systematic theology, the study of the Bible, the study of God, the study of the deity of Christ, including doctrine on Trinity. तो यहाँ हमने देखा कि हमने बाइबल धर्मशास्त्र और परमेश्वर का अध्ययन, तो ये परमेश्वर का सिद्धांत और मसीह परमेश्वर का अध्ययन, ये सब कर लिया है। We have also studied the study of the Holy Spirit. We have studied the study of humanity. And today we have concluded the study of sin. और हमने आत्मा का शास्त्र के बारे में, मानव जाति के अध्ययन के बारे में, और आज हमने पाप के अध्ययन का विषय को भी पूरा किया। So God willing, we have to study the study of salvation, soteriology, and then later we will study the study of the church, ecclesiology. और परमेश्वर ने चाहा तो आगे हम उद्धार के शास्त्र के बारे में, मोक्ष का अध्ययन करेंगे, और अंत में फिर हम कलीसिया का अध्ययन करेंगे। Let us pray. आइए दुआ करें।